Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Vardi Director School Education, Jammu. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 2, Polynomial. Polynomial, an expression of more than two algebraic terms, especially the sum of several terms that contains different power of the same variable. In mathematics, a polynomial is an expression. In mathematics, a polynomial is an expression consisting of variable and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variable. The algebraic expression of the form a0 a1x plus a1x plus a2x square plus so on plus an xn, where a0, a1, a2 and so on an are constant. क्या है बच्चों ये? Constant. And x is a variable. X is a variable. Constant क्या है? A symbol having fixed value is called a constant. A symbol having fixed value is called a constant. Whereas symbol that can take any real value is called variable. क्या कहते हैं बच्चों? Variable. The symbols x, y, z, s, t, etc. are quite often used to denote variable. ये जो सिंबल हैं x, y, z, s, t एंड एक्स्ट्रा, ये किस लिए यूज करते हैं? वेरिएबल के लिए. द सिंबल a, b, c, एक्स्ट्रा आर यूज टू डिनोट कांस्टेंट. किसके लिए डिनोट करते हैं ये? कांस्टेंट. व्हाट द नंबर ऑफ कांस्टेंट to be taken more and more than the symbol. जब constant more and more हो तब हम symbol क्या लेते हैं? a0, a1, a2 and so on, or v0, v1, v2 and so on are used to represent the constant. किसको represent करते हैं ये symbol? Constant को. Polynomial in one variable. Now, polynomial in one variable. An algebraic expression like 5x, x square plus 3x, 2x cube plus 5x square plus 3x plus 7 extra contain only one variable. क्या हो यहाँ पे? One variable हो. जैसे यहाँ पे है x है, इस पे भी x है. Containing only one variable x and exponents of variable x are whole numbers. The algebraic expression of this form are called polynomials in one variable.
ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किनको? कंटेनिंग ओनली वन वेरिएबल एक्स। एक्स हो, आपने देखा वेरिएबल किससे डिनोट करते हैं? एक्स, वाई, जेड, कुछ भी हो, वन वेरिएबल हो, एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड our whole number, the algebraic expression of this form is called polynomial in one variable. That is in variable x and are denoted by the symbol of one variable. जो polynomial in one variable हो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? px, fx, qx, etc. For example, px equal to 2x square plus 3x plus 7 is a polynomial in variable x. ये कैसा पॉलिनोमियल है? जो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x. In the polynomial fx, ax square plus bx plus c, the expression, अब इस एक्सप्रेशन में ax square, bx, c और कॉल द टर्म, इनको क्या कहते हैं हम? टर्म। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? fx. एंड द कांस्टेंट c is called the constant term of the polynomial fx. One variable. For example, जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं हम, ये एग्जाम्पल है हमारी एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7. ये भी क्या है? वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. वेरिएबल यहां बच्चों क्या है? एक्स है. जैसे ये है 3y स्क्वेयर प्लस 5y, तो यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों? y है. ये थर्ड देखो एग्जाम्पल इसकी, t स्क्वेयर प्लस 4, t स्क्वेयर प्लस 4, यहां पे वेरिएबल बच्चों क्या है? t. ये कैसे पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल. अब हम करते हैं टर्म्स क्या होती है. टर्म क्या होती है? इन द पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर एंड 2x आर कॉल्ड टर्म्स. इनको हम बच्चों क्या बोलेंगे? जैसे ये पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, यहाँ पे x एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है. एक कौन सी है? एक्स स्क्वेयर है, दूसरी क्या है? 2x है. आर कॉल्ड टर्म्स. इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं. सिमिलरली द पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल हमारे पास है 3y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 7, यहां पे बच्चों कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म हमारे पास है 3y स्क्वेयर, ठीक है. दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? 5y. तीसरी टर्म क्या है यहां पे? 7. यहां पे बच्चों कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है. जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारा माइनस y क्यूब एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2. तो बच्चों यहां पे कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में? एक टर्म आ जाएगी माइनस एक्स क्यूब, दूसरी आ जाएगी 4x स्क्वेयर, तीसरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी? 7x, और चौथी टर्म क्या आ जाएगी? माइनस 2. इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं.
टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स आपने देख ली ना बच्चों, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होती हैं? जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक्स स्क्वायर एंड 2x क्या है? टर्म्स है। जैसे इसमें हमने देखी 3 है, एक ये टर्म है 3x 3y स्क्वायर, एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, अब हम करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अब हमने टर्म की ना बच्चों, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। अब ये यहां पे जैसे ये टर्म थी हमारी, हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 2. This is a polynomial. अब यहां पे बच्चों हम कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? यहां पे x के साथ x से पहले कांस्टेंट टर्म जो होगी क्या है? कुछ भी नहीं है ना, माइनस है यहां पे। तो यहां पे 1 होता है जब कुछ भी नहीं हो, टर्म के साथ कुछ भी नहीं है, जो वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं? 1। यहाँ पे -1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -1। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? एक्स से पहले एक्स के साथ जो है कांस्टेंट टर्म क्या है? ये 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? 7। अब यहां पे -2 कांस्टेंट है टर्म जी, तो इसको क्या हम करेंगे? x0 का क्या आ जाएगा? -2। रिमेंबर आपको याद है ना आपको कि किसी की भी 0 पावर है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। x0 क्या होगा? 1। तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म थी, हमने अगर x का वेरिएबल देखना है तो यहां पे कितना होगा? x0 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -2। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जैसे ये टर्म है, 2 है, 7 है, -2 है, और कोई टर्म होगी और कोई नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बच्चों, क्या बोलना है हमने उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट जो 0 होगा, कांस्टेंट 0 होगा, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? जीरो पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब आगे हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है x + 1/x। दूसरा ये एग्जांपल लिया हमने, √x + 3। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x + 1/x को कैसे लिख सकते हैं? x + 1/x। अगर हमने इसको ऐसे लिखना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है, पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या आ जाएगा? -1। अब आपका जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था x + 1/x, इसको हमने कैसे लिख दिया? x + 1/x + x raised to power -1। Here the exponent of the second term, जो सेकेंड टर्म है हमारी, अभी हमने टर्म की ना, यहां पे ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? -1।
क्या है एक्सपोनेंट? -1, विच इज नॉट अ होल नंबर। वो होल नंबर नहीं है। दिस algebraic एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हमने चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इसके एक्सपोनेंट देखे, वेरिएबल के एक्सपोनेंट देखे। जो सेकेंड टर्म का एक्सपोनेंट था वो क्या है? नेगेटिव है, माइनस में है, विच इज नॉट अ होल नंबर। वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर आप जानते हो ना, होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो, जीरो और सारे काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। जो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन नंबर को हम क्या कहेंगे? होल नंबर। तो ये माइनस में, माइनस जो है विच इज नॉट अ होल नंबर, दिस algebraic एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसी तरह हम सेकेंड को चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट x प्लस 3 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर इसमें एक्सपोनेंट में लिखनी है इसकी, तो क्या होती है? 1/2 होती है। हम कैसे लिखते हैं? अगर किसी का स्क्वायर रूट है तो उसको हमने एक्सपोनेंट लिखना है उसका, तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं? क्योंकि 1/2 जो है इज नॉट अ होल नंबर। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इफ द वेरिएबल in a polynomial is x, we denote the polynomial by px, qx और rx। अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो x हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? px, qx, rx एक्स्ट्रा, इसी तरह जैसे भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल की क्या होती है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। हम उसमें टर्म्स पता होती हैं कि इतनी टर्म है, तो हम उसको आगे टाइप्स देते हैं। जैसे अगर वन टर्म हो किसी की, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। मोनो क्या होता है? वन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे 2x है, यहां पे टर्म कितनी है? 1। जैसे 5x है, टर्म कितनी है? ओनली 1। 2 है, टर्म कितनी है? 1। ये सारे कैसे पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। अब बाइनोमियल, बाय क्या होता है? 2। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, जैसे ये पॉलिनोमियल px क्या है? x प्लस 1। यहां पे बच्चों कितनी टर्म्स है? 2। एक वन टर्म क्या है? x है। सेकेंड टर्म कौन सी है? 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? जिसमें 2 टर्म्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे ये है qx, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहां भी कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है ना बच्चों? इसमें भी एक टर्म है, कौन सी है? एक्स स्क्वायर है, दूसरी माइनस एक्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राई क्या होता है? 3। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल px, तो क्या टर्म हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पाई। ये वन टर्म
2 and 3। इसमें 3 टर्म्स हैं। A polynomial having only 3 terms are called trinomial। जैसे ये RU है, यहाँ वेरिएबल क्या है? U प्लस U स्क्वायर माइनस 2। यहाँ भी बच्चों कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसका नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल। अब बच्चों हमने डिग्री देखनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स कितना है? 3x रेज टू पावर 7 माइनस 4x रेज टू पावर 6 प्लस x प्लस 9। अब बच्चों इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है। क्या है? x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री क्या आ जाएगी? जो इसकी पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है बच्चों? यहां पे सबसे x कितना है? x की पावर क्या है? 7। यहां x की पावर क्या है? 6। यहां x की क्या है? 1। यहां x की क्या है? 0। तो हाईएस्ट कितनी है? 7। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी? 7। ये क्या हमने किया? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आ गई? अब हमने बच्चों क्या किया? यहाँ पे हमने क्या क्या किया? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री और बच्चों अब हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब हमारे पास जो पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड पार्ट है बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2। थर्ड पार्ट 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2। फोर्थ पार्ट है बाय प्लस 2 बाय y एंड फिफ्थ पार्ट इज x10 बाय 3 t रेज टू पावर 50। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं इनको हमने चेक करना है क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तब भी आपको रीजन देना है, नहीं है तब भी आपको बताना क्यों नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो यहां पे बच्चों वेरिएबल क्या है? x। ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है? ये वन वेरिएबल। अब इनकी हमने क्या चेक करनी है? एक्सपोनेंट। इनकी वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करना है। फर्स्ट कितनी टर्म्स हैं? अभी आपने पहले किया, टर्म्स भी किए, एक्सपोनेंट का भी किया। अब यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं बच्चों? कितनी टर्म है? एक है 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस 3x और तीसरी टर्म 7। ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है और हमने वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या होता है? जो उसकी
पावर होती है। अब x की पावर यहाँ क्या है 2, यहाँ पे कितनी है? अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 होती है। यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं दी है तो उसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पावर कितनी है 1, और यहाँ पे x दिया नहीं है तो x की पावर क्या होगी 0। जीरो के x किसी भी नंबर की पावर 0 है किसी भी, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। जब सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो वो कैसा है? होल नंबर है सारे। यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, तो ये कैसे नंबर है? होल नंबर। यही लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल x एंड एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। Therefore, the expression is a polynomial in one variable। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमने सारे जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट देखे वो सब क्या है? होल नंबर हैं, तो ये क्या होगा? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। अब सेकंड पार्ट जो है वाई स्क्वायर प्लस अंडर स्क्वायर रूट 2। अब हमारा सेकेंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वाई का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। 2 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है, तो क्या है? Because the exponent of y in each term is a whole number, इसलिए therefore this is a polynomial in one variable। इसी तरह थर्ड पार्ट बच्चों क्या है? 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 3 ऐसे ही है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट की अगर हमने एक्सपोनेंट लिखना है, एक्सपोनेंट पावर लिखनी है, तो क्या होती है? 1/2। स्क्वायर रूट की पावर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? t की पावर 1/2, और यहाँ पे t इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखो बच्चों, हमने एक्सपोनेंट, यहाँ वेरिएबल क्या है? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? t है। हमने t की पावर देखनी है। यहाँ 1/2 है। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? सिंस द टर्म 3t रेज्ड पावर क्या है इसकी? 1/2 has exponent 1/2 which is not a whole number, जो कि होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट है y प्लस 2y 2/y। इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2। अब y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? y को ऐसे हमने लिखना है तो पावर क्या हो जाएगी? -1। इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है, और वेरिएबल के एक्सपोनेंट हमने देखने हैं। यहाँ पे क्या है? y का एक्सपोनेंट क्या है? 1। जब कुछ भी नहीं दिया तो क्या होता है? 1। और यहाँ y का एक्सपोनेंट क्या है सेकेंड टर्म में? -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? द टर्म 2 by raised to power -1 has
एक्सपोनेंट -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। अब ये पूछता है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब यहां पे देखो वेरिएबल कितने हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। यहां पे कितने बच्चों, कितने वेरिएबल है, 3। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? सिंस देयर आर 3 वेरिएबल दैट इज x, y एंड t। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने रीजन भी दे दिए कि क्यों ये पॉलिनोमियल है और क्यों नहीं है। हमने रीजन के साथ इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जी आपको एक्सप्रेशन ये दिया है, इसमें आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट हमारा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है π/2 प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट है √2 x - 1। अब ये पार्ट में हमने किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया जो टर्म होती है, टर्म हम कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब यहां पे हमने कांस्टेंट देखना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ भी नहीं है यहां पे, तो उसका मीनिंग क्या है, यहां पे 1 है। क्या होता है, 1। जब प्लस है तब हम लिखते नहीं है, प्लस नहीं लिखते। जब माइनस हो तब हम -1 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे +1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमने बच्चों किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है, माइनस है ना। आपको मैंने बताया कि जब प्लस हो तब हम 1 ही लिखते हैं, जब माइनस हो तब हम क्या लिखते हैं, -1। तब इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है बच्चों। जब प्लस हो, यहां पे प्लस था एक्स स्क्वायर से पहले, तब हमने माइनस, जहां प्लस नहीं लिखा। जब माइनस होगा तब हमने माइनस लिखना है, -1। अब यहां पे थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमने किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर आपको बताया जो टर्म होती है, टर्म कैसी होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। जो कांस्टेंट होगा वो लिखेंगे हम। कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है, π/2। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या है, √2 x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तब हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखना है, 0। तब क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे
उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड वन ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी 100। एक हमने बाइनोमियल लिखनी है और एक लिखना है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, 1 टर्म होती है, और बाइनोमियल में क्या होती है, 2 टर्म्स होती हैं। तो हम कुछ भी नंबर 2 टर्म्स वाले जो लिखेंगे उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। क्या डिग्री होनी चाहिए, 35। तो हम क्या लिखेंगे, 2x रेज टू पावर 35 प्लस 325, ये क्या आ गया हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल हमने क्या लिखना था, क्वेश्चन क्या था हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री कितनी 35। तो हमारा ये आ गया हमारा, ये हमने लिखा 2x रेज टू पावर 35 प्लस 325 बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें एक टर्म होती है, 1 टर्म। तो यहाँ पे 1 टर्म है, एक ही टर्म हमने लिखा जिसकी डिग्री 100। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया है, इनकी हमने डिग्री देखनी है। अब देखो ये पॉलिनोमियल जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमने डिग्री क्या होती है बच्चों, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ वेरिएबल क्या है, x। तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो पावर x की 3 है, यहाँ पे x की 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है। तो हाईएस्ट कितनी है बच्चों, 3। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है 4 माइनस y²। तो वेरिएबल यहां क्या है, y। हमने वेरिएबल की डिग्री देखनी है। डिग्री क्या होती है, जो उसकी एक्सपोनेंट, जो उसकी पावर होती है। यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह यहाँ पे देखो 5t माइनस 7। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, t है। t की पावर कितनी है हाईएस्ट, 1। तो इसमें क्या आ जाएगी डिग्री, 1। इसी तरह यहाँ पे 3, जो फोर्थ पार्ट था वो 3 दिया है, सिंपल 3 दिया है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, कुछ भी ना दिया है। जब कुछ भी नहीं दिया तो हमने x0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 0। यहाँ डिग्री क्या आ जाएगी बच्चों, तो डिग्री क्या होती है, जो उसकी पावर हो, जो उसका एक्सपोनेंट हो, वेरिएबल का एक्सपोनेंट हो, वो डिग्री होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों जी पार्ट दिए हैं हमें। फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। सेकेंड पार्ट है x माइनस x³। थर्ड पार्ट है y² प्लस y प्लस 4।
फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ पार्ट है 3t, सिक्स पार्ट है टी स्क्वायर, सेवन पार्ट है 7x³ हमने क्लासीफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक और क्यूबिक। अब बच्चों आपने पहले की टर्म्स, फिर देखा आपने पावर्स। अब हमने देखना है जिसमें डिग्री जो 2 होगी, डिग्री 2 होगी, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, क्यूबिक। अब फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो जिसकी 2 होगी वो क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक। अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में x² प्लस x, तो डिग्री क्या है इसकी 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। थर्ड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट x माइनस x³। अब यहां पे हाईएस्ट जो पावर है कितनी है, 3, डिग्री 3 है। जब 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अब इसमें वेरिएबल क्या है, y, तो डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की आपको मैंने अभी बताया, 2 को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहाँ पे क्या है वेरिएबल, x की डिग्री देखी 1, आपको मैंने अभी समझाया कि जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t की डिग्री कितनी है, 1 को अभी मैंने आपको बताया 1 होगी डिग्री, तो क्या बोलेंगे हम उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे t है, t², t की डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो 2 जो है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे 7x³, तो डिग्री कितनी है, 3 क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बच्चों, 5th। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू।